students, welcome to my channel. Today's topic is mathematical tools के अंदर सब टॉपिक graphs of some commonly used function. Graphs of some commonly used functions. फिजिक्स के अंदर हम सभी चैप्टर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ यूज करते हैं, तो वो किस तरह से बनते हैं उनको आज हम समझेंगे. नंबर वन स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन. तो स्ट्रेट लाइन के लिए सबसे पहले दिस इक्वेशन इज y इज इक्वल टू mx. इक्वेशन इज सपोज y इज इक्वल टू mx. Here this m is known as slope. इस m को हम कहते हैं slope of the line. Slope of the line, right? Slope of the line with positive x-axis. Positive x-axis के साथ, and this m is also known as tan theta. Tan theta भी इसी को हम लिखते हैं. And the graph is like this. ठीक है. Here this y-axis and here this x-axis, and you know this point is known as origin, right? When x is equal to 0, then y is equal to 0. x is equal to 0 पुट करते हैं तो y is equal to 0 आता है. Similarly x is equal to 1, then y is equal to 1m. Similarly x is equal to 2, then y is equal to 2m. As we increase the value of x, the value of y also increases, directly proportional. Therefore the graph passes through point O. origin से पास होता है, right? Then the graph of this straight line y is equal to mx is like this. Number 2, second is y is equal to mx plus c, right? Here this c is the intercept on the positive y-axis. Intercept on positive y-axis, right? And m is again slope of the line. Right? Now the graph is suppose x is equal to 0, then y is not equal to 0. Because y is equal to mx plus c, तो x is equal to 0 पर y की वैल्यू c प्लस c. Therefore ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है like this. ठीक है. And this angle theta here is the slope, and this is tan theta. Tan theta is slope of the line, right? With positive x-axis जो लाइन हमारा एंगल बनाते हैं that is slope. This is x-axis and this y-axis here, right? Number 3 is this c. Number 3, y is equal to this mx minus c. Y is equal to mx minus c. Here c is the intercept on the negative y-axis. c is the intercept कहाँ पर? Intercept on negative y-axis, right? Then graph is like this. This is x-axis, this y-axis, and the graph is like this. And this is intercept here, c on the negative y-axis. Here this intercept c on the positive y-axis, because here plus c and here this minus c. ठीक है. So this is on the negative y-axis and this origin. Therefore the graph of this equation is this line, intercept on negative y-axis. Number 4, this y is equal to minus mx plus c. Here m is negative. Therefore graph is, this is x-axis here and this is y-axis here. ठीक है. Then c is intercept on positive y-axis. Therefore the graph is like this. ठीक है. And this angle theta is or alpha is greater than 90 degree, right? Here this angle theta
and this is the slope theta, tan theta कह सकते हैं. This m is here, tan theta with minus sign. ठीक है, minus m is this tan theta, right? Because here this angle is greater than 90 degree with the positive x-axis, right? Angle is always positive with positive x-axis, right? So these are the graphs for the straight line. Next is number 2, parabola. Right? Parabola के लिए we know that quadratic equation क्या होती है? Quadratic equation, you know, this y is equal to ax square plus bx plus c, right? ये जानते हैं. Such type of equation is known as quadratic equation. Here the power of x is 2, maximum power of x is 2, and such type of equation is quadratic equation, right? Here a, b and c are constant, right? A, b and c are constant, and a is not equal to 0. A is not equal to 0 होना चाहिए, right? Then the simplest form of quadratic equation is क्या होती है? y is equal to ax square, right? Simplest form of the quadratic equation. When the c and b are 0, then y is equal to ax square, and this equation is known as equation of parabola, right? Now number one, when a is positive, यदि यहाँ पर a की वैल्यू पॉजिटिव है, then इस इक्वेशन का ग्राफ देखिए, इस तरह से बनता है. दिस इज x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस, राइट? This x axis and this y axis. Now this origin when x is equal to 0, y is 0. तो हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता है, right? When x is equal to -1, then y is equal to a, and x is equal to +1, then again y is equal to 1, right? It means this symmetric ग्राफ बनता है, symmetric, right? तो this is known as symmetric parabola, right? Symmetric parabola. Number 2, when a is negative, यदि हमारा a नेगेटिव है, then ग्राफ कैसा होगा? Then graph is like this. Here this y axis and here this x axis. ग्राफ हमारा कैसा होगा? इस तरह से होगा, like this. y एक्सिस, यदि हमारा a नेगेटिव है इसमें, तो यहाँ पर नेगेटिव y में ग्राफ होता है, राइट? नंबर 3 क्या कर सकते हैं? ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन y इक्वल टू ax स्क्वायर है, दिस में भी लेट क्या हो सकता है? x इक्वल टू ay स्क्वायर हो सकता है. ये इक्वेशन आपकी इस तरह से भी हो सकती है, राइट? ना इसके अंदर नंबर 1, यदि हम इसमें नंबर 1 कहते हैं a इज पॉजिटिव, यदि हमारा a यहाँ पर पॉजिटिव है, देन क्या हो सकता है? इस इक्वेशन का ग्राफ क्या हो सकता है? देखिए, a इज पॉजिटिव, दिस इज y, पॉजिटिव y एक्सिस, एंड दिस इज पॉजिटिव x एक्सिस. अब हमारा क्या होगा? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होगी, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्री. तो दिस ओरिजिन एंड दिस लाइक दिस, इस तरह से ग्राफ बनता है. किसका? x इज इक्वल टू a y स्क्वायर का. x इज इक्वल टू a y स्क्वायर. सपोज y इज इक्वल टू 1, देन x इज इक्वल टू प्लस a, y is equal to 1, then x is equal to plus a, and similarly y is equal to -1, then again x is equal to plus a.
तो इस इक्वेशन का ये ग्राफ बनता है आपका। नंबर 2, इसमें यदि आपका a नेगेटिव है, यदि आपका यहाँ पर a नेगेटिव है, देन ग्राफ कैसा बनता है? दिस इज हियर x एक्सिस, y एक्सिस, ओरिजिन, तो फिर आपका ग्राफ ऐसा बनता है। a यदि आपका नेगेटिव है तो ये आपका हो गया पैराबोला के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बाद y इक्वल टू ax स्क्वायर इज सिंपलेस्ट फॉर्म। a यदि पॉजिटिव है तो लाइक दिस, a यदि नेगेटिव है तो लाइक दिस। और यदि हमारी ये इक्वेशन इस तरह से है, इस तरह से है, तो फिर क्या होगा? दिस इज फॉर पॉजिटिव a, इस तरह से ग्राफ बनता है। और फिर a नेगेटिव है तो ऐसा ग्राफ बनता है। नंबर 3 पैराबोला के बाद नंबर 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। नंबर 3 इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। नंबर 3 इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट। इस तरह से ग्राफ कौन सा होता है जिसका नाम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है? लेट इक्वेशन इज सपोज, यदि हमारी इक्वेशन xy इक्वल टू c है, यदि हमारी इक्वेशन xy इक्वल टू c वेयर दिस c इज कांस्टेंट, यदि ये यहाँ पर c की वैल्यू कांस्टेंट है तो हमारा जो ग्राफ बनता है x और y के बीच में जो ग्राफ बनता है, ठीक है, वो कैसा बनेगा? नेचर ऑफ दिस ग्राफ इज लाइक दिस इज हियर x एक्सिस, दिस हियर y एक्सिस एंड दिस ओरिजिन, ठीक है ना। इस तरह से ग्राफ बनता है, इस तरह से। क्यों? when value of x increases the value of y will decrease। x हमारा इंक्रीज होता है तो क्या होगा? x यदि हमारा इंक्रीज होता है तो y की वैल्यू डिक्रीज होगी, बिकॉज द प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज कांस्टेंट। प्रोडक्ट ऑफ x एंड y इज कांस्टेंट, देयरफॉर एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x the value of y will decrease, and such type of graph is known as rectangular parabola। Number 4 सर्कल की इक्वेशन क्या होती है? दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये सर्कल की इक्वेशन होती है, राइट। अब x और y में यदि हम ग्राफ बनाते हैं, तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, राइट। दिस इज x एक्सिस एंड हियर दिस y एक्सिस। ये सर्कल की इक्वेशन आपकी दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू सॉरी दिस इज a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, राइट। तो दिस इज x एक्सिस, दिस y एक्सिस एंड दिस ओरिजिन हियर, राइट। नाउ दिस is equal to a radius of the circle and this is also a। तो ये आपकी सर्कल की इक्वेशन। नंबर 5 इज एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है? दिस इज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स की इक्वेशन है। अभी तो आपको ये इक्वेशन याद करनी है केवल, बट आगे भी आप डिटेल में पढ़ेंगे, मैथ्स के अंदर पढ़ेंगे डिटेल में। फिजिक्स में तो केवल इतना ही डायरेक्ट यूज होता है इनका। एलिप्स की इक्वेशन हमारी x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b इज इक्वल टू 1, राइट। नाउ इसका xy का जो ग्राफ बनता है वो इस तरह से बनता है। x और y के बीच में जो ग्राफ बनता है दैट इज दिस x एक्सिस एंड दिस y एक्सिस। हियर दिस इज a एंड हियर दिस b, राइट। a और b इसमें अलग अलग होते हैं। ये इसका ओरिजिन हो गया x एक्सिस y एक्सिस दिस। तो दिस इज एलिप्स की इक्वेशन है ग्राफ बिटवीन x एंड y। नंबर 6 इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? एक्सपोनेंशियल फंक्शन में देखिए this y is equal to let this e raised power minus kx, y is equal to e raised power minus kx। Such type of function is known as exponential function।
such type of function known as exponential function, right? And the graph between x and y, मतलब y में वेरिएशन विद x, ठीक है। x को जैसे जैसे इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू कैसे चेंज होती है, x को जैसे हम इंक्रीज करते हैं तो y की वैल्यू कैसे चेंज होती है। सपोज x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मीन्स क्या होता है, x इक्वल टू यदि 0 लिखते हैं हम तो दिस y इक्वल टू 1 अपॉन e रेज़ पावर 0, राइट। 1 अपॉन e रेज़ पावर 0 हो गया, इसको 1 अपॉन e रेज़ पावर 0 लिख दिया। e रेज़ पावर 0 इज 1, दिस इज 1, तो दिस इज इक्वल टू 1। तो 0 पर x की वैल्यू 0 पर y की वैल्यू हमारी ये फिक्स होगी कुछ यहाँ पर, बट एज वी इंक्रीज द वैल्यू ऑफ x, पहले यहाँ पर e, ठीक है, उसके बाद 2x हो गया, x की वैल्यू 2 हो गई, उसके बाद 3 हो गई, तो ये वैल्यू इंक्रीज होगी, e की पावर 3k हो गई मान लीजिए, उसके बाद 4k हो गई, उसके बाद 5k हो गई, तो दिस डिनोमिनेटर विल इंक्रीज and hence this value will decrease and hence this value of y also decreases। तो ये ग्राफ हमारा इस तरह से होता है and this line will meet the x-axis at infinity। This line will meet the x-axis where at infinity। तो such type of graph is the graph of exponential function। Number 7 is, next type of function is sinusoidal function। sinusoidal function next type of function is क्या है, sinusoidal function है। this is number 7, sinusoidal function। sinusoidal function क्या होते हैं, sinusoidal function ये फंक्शन आपके क्या होते हैं, नंबर 1, this number 1 is sine function, right। अब sine function क्या हो सकता है, this y is equal to suppose क्या हो सकता है, this is a sin x, y is equal to a sin x, तो इसको कहते हैं साइन फंक्शन। अब इसका ग्राफ क्या हो सकता है, देखिए ग्राफ क्या हो सकता है, दिस इज x axis here and this y axis and this is origin। here suppose x is equal to 0, तो sin 0 is 0, therefore y is equal to 0, right, y is equal to 0। and here this suppose x is equal to 90 degree, x is equal to suppose pi by 2, then sin 90 is 1 and this y is equal to a, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मैक्सिमम आपका कितना आ जाता है, दिस इज a, राइट। देन अगेन ये आपका वैल्यू यहाँ पर पाई बाई 2 था ना, पाई साइन 180 इज 0, देन साइन 0 इज 0, देन y इज इक्वल टू 0, तो इस तरह से आपका ग्राफ बनता है, राइट। अब उसके बाद फिर हम वैल्यू रखें कितनी वैल्यू रखें, दिस इज 2 पाई हेयर एंड दिस इज हेयर 3 पाई बाई 2, x की जगह पर 3 पाई बाई 2 रखा है तो माइनस ए आता है, दिस वैल्यू इज हेयर माइनस ए एंड दिस वैल्यू इज हेयर प्लस ए, ठीक है, दिस वैल्यू प्लस ए, दिस इज माइनस ए। तो सच टाइप ऑफ ग्राफ इज नोन एज साइन फंक्शन या साइनोसॉइडल, राइट। साइन कर्व का ग्राफ इस तरह से होता है। नंबर बी, कोसाइन फंक्शन क्या होते हैं, कोसाइन फंक्शन में क्या होता है, दिस y इज इक्वल टू a cos x लिखते हैं, y इज इक्वल टू a cos x लिखते हैं। ग्राफ कैसा होता है, here this x axis and here this y axis, this origin x इज इक्वल टू 0 डिग्री लेते हैं, x की वैल्यू यदि 0 लेते हैं हम तो cos 0 इज 1, देन y इज इक्वल टू a, x की जगह पर 0 रखते हैं तो cos 0 इज 1 इंटू दिस a, therefore y is equal to a आ जाता है, राइट, y is equal to a। ना अब x की जगह पर पाई बाई 2 रखते हैं तो cos 90 is 0, then y is 0, राइट। सिमिलरली ये वैल्यू रखते हैं तो इस तरह का ग्राफ बनता है हमारा, इस तरह का ग्राफ बनता है, दिस इज वैल्यू a, राइट, here this maximum is a and here this is again this same value 2 pi and here
here this is here pi by 2 cos 90 था, तो this is pi by 2 and here this how much pi cos pi is -1, therefore this is here -8, this is pi by 2 and here this 3 pi by 2, here this value is 3 pi by 2 and this 2 pi is here maximum value 8. So these are the some commonly used function and their graphs very important हैं, very important, क्योंकि ये आगे फिजिक्स के अंदर चैप्टर्स में किसी भी टॉपिक के अंदर यूज करते हैं इनको। हम इनका याद करना, सभी को समझना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।